So, dear students, today we will discuss about our next exercise number 2.2 for class 8th math subject, and chapter name is linear equation in one variable. So, प्यारे विद्यार्थियों, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੀਕਰਨ। ਓਕੇ, तो विद्यार्थियों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ 108 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। A number is as much greater than 84 and equal to as much less than 108. Find the number. ਓਕੇ, तो ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਕॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ, तो 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਗੀ, तो 84 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 19 ਹੀ 108 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 108 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ 108 ਮਾਈਨਸ x। तो ਬੱਚੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, तो x ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜਮਾ ਦਾ x ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 108 ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। 108 ਜਮਾ 84 ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 192। ਠੀਕ ਹੈ, तो इधर x जमा x कितना हो गया 2x, तो x का मूल कितना आया 192/2 बराबर ਇਹਦੀ वैल्यू बच्चों कितनी आ जानी है, देखो 9 दूनी 18 6 दूनी 12, यानी कि ये आ गया बच्चों x की वैल्यू 96, यानी कि 96 ਦਾ आंसर आएगा। तो वो संख्या ਕਿਹੜੀ है 96 ਹੋਵੇਗੀ। ओके, तो ये ਸੀਗਾ बच्चों ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਰਸਟ ਸਮ। ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 34। डिवाइड 34 into two parts। ठीक है, डिवाइड 34 into two parts in such a way that 4/7 of one part is equal to 2/5 of the other। ओके, मतलब कि 34 ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਾ 4/7 ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ 2/5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। तो ਬੱਚੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 84 ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 34 ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। तो पहला भाग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 34 ਮਾਈਨਸ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਾ 4/7, तो ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ 4/7 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦਾ 2/5। ठीक है, ये दोनों की ਹਨ बराबर ਹਨ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 4/7 into x equal to 2/5। ठीक है, into 34 minus 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 7 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ। तो ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਗੁਣਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ गुणा, ਤੇ इधर 7 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ गुणा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो 4 पंजा किन्ने हो गए 20x बराबर 7 दूनी किन्ने हो गए 14। ठीक है, 34 माइनस x ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੋ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 34 ਦੀ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਗੁਣਾ। ਜਦੋਂ 34 ਦੀ ਤੁਸੀਂ 14 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਗੁਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ।
ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 476 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 34 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 14 ਦੀ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 20x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ 476 ਮਾਈਨਸ 14x। ਹੁਣ 14x ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਨ, ਘਟਾਓ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਮਾ ਦੇ, यानी कि प्लस दे। तो 14x 14x जमा 20x हो गए 34x, ठीक है। तो ये 34x बराबर कितना आ गया 476। इट मीनस हुण 34x दे 34 दूसरी साइड जाणगे तां ये बच्चों भाग दे हो जाणगे, ठीक है। कादे हो जाणगे, भाग दे। इहदा मतलब x बराबर 476 बटा 34, जिथे कि x का मुल कितना आ जाऊगा 14 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੋ ਇਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 14 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 14 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਆਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪਾर्ट यानी कि पहला भाग किहदे बराबर आया 14 दे, एंड सैकेंड पार्ट 34 माइनस 14 बराबर कितना आ गया 20। तो तुहाडे दो आंसर आए ने, एक 14 ते एक 20, ठीक है। दोनों का जोड़ देखो 34 बनता पिया, लेकिन उन्होंने आपां इदां डिवाइड कर दिता कि पहला भाग जिहड़ा है वो की है, वो पहला भाग जिहड़ा है एक भाग वो दूजे भाग दे की हैगा दो पहला भाग दा 4/7 हिस्सा दूजे भाग दे 2/5 हिस्से दे बराबर है 30, ठीक है। तो उत्थों असीं इहनूं इक्वेशन नूं सॉल्व कर लिया है। नैक्सट साडा सम है, जेकर असीं 5 गुणे विचों जेकर असीं किसी संख्या दे 5 गुणे दे विचों 5 घटाया जावे तां नतीजा 5 गुणे दे विचों 5 घटाया जावे तां नतीजा उस संख्या दे दुगणे तो 4 वध आउंदा है, वो संख्या पता करो, ठीक है। वो संख्या की है पता करनी है। ते विद्यार्थियों ये हुण किवें करांगे, देखो इहदे विच सब तो पहला क्वेश्चन समझो, फाइंड ए नंबर सच दैट when 5 is subtracted from 5 times of a number, ठीक है। तो मान लो पहला तुसी की करोगे let मतलब मान लो, पंजाबी च लिखोगे मान लो संख्या, ठीक है। संख्या कितनी है, संख्या मतलब कि नंबर, उन्होंने तुसी x मान लेना है बच्चों, ठीक है। ना मान लेना है x, ठीक है। let the number be या संख्या इक्वल टू x ते संख्या दे 5 गुणे विचों, यानी कि इस नंबर का 5 गुणा, ठीक है। 5 गुणा कितना हो गया, 5 गुणा हो गया बच्चों 5x, ठीक है। संख्या का 5 गुणा, इत्थे तुसी की लिखोगे संख्या का 5 गुणा 5x हो गया ना, गुणा का मतलब 5 दी x नाल गुणा कर देती, ओके। तो उस विचों हुण कितना घटाया जावे, उस विचों बच्चों घटाया जावे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं इत्थे क्वेश्चन ले देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5x दे विचों हुण जे 5 घटाते जाण तां जो नतीजा प्राप्त होया वो बराबर होएगा उस संख्या दे दुगणे, उस संख्या दे दुगणे। हुण इसे ही संख्या दा दुगना कितना करोगे तुसी, वो 2x बन गया, ठीक है। उस संख्या दे दुगणे तो 4 वध, ठीक है। तो हुण 2x जो दूसरी साइड गया ते इत्थे बच्चों 5x माइनस 2x 3x हो गया, ते 4 जिहड़े 5 ने दूजे पासे गए जमा दे हो जाने ने, 4 जमा 5 9 हो गए, इत्थे 3x आ गया, तो x का मुल 3 3 9 बनता पाया, तो x की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, ठीक है। कितनी वैल्यू आई 3 आई, तो संख्या साडे को की है वो संख्या आ गई 3, ठीक है। तो इसका आंसर जिहड़ा है वो 3 आएगा। स्टेटमेंट वाले सम बड़े ध्यान नाल करने हुंदे आ, स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली समझ के, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट साडा सम है, एक संख्या दो संख्या वाली संख्या दे अंकां दा अंतर। ये बच्चों बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हैगा और औखा भी है, ठीक है। ये सौखा क्वेश्चन ही है, इनू तुसी बार बार रिपीट करोगे तां जाके आना हैगा, बहुत मतलब ध्यान नाल करन वाला क्वेश्चन हुंदा, ठीक है। तो हुण ये संख्या की है, इहदे विच की है कि एक दो अंकां वाली संख्या दे अंकां दा अंतर 3 है, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। क्वेश्चन विच दे दिता कि जेकर असीं डिजिट नूं इंटरचेंज कर दईए, डिजिट किदां दो अंकां वाली संख्या किहड़ियां हुंदियां ने, देखो दो अंकां दी संख्या 10 तो शुरू हो के 99 तक ने बच्चों, ठीक है। 10 तो शुरू हो के 99 तक ये सारियां दो अंकां दी संख्या, ठीक है। तो जिद्दां मैं लिख दिता इत्थे 89, तो 89 विच की है, मैं इहदे अंक किदां बदले, इहनूं अगे लै गया, ठीक है, और इहनूं पिछे लै गया, तो 98 बन गया, ठीक है। तो इस तरह
मतलब कि डिजिट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ यानी कि 89 प्लस 98 इदा काम करना है इत्थे ठीक है ਉਹਨੂੰ जोड़ देना है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 143 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਠੀਕ means the if the digits are interchanged then the resulting number is added to original number we get 143 what is the original number तो किद्दां करना है बच्चों बड़े ध्यान नाल ही करन वाला सोच समझ के करन वाला सवाल हैगा सिंपल सवाल नहीं है औखा सवाल है तो सब तो पहला तुसी इत्थे डिजिट मनोगे let the two digits be ठीक है two digits be वो साडे को की है a and b ठीक है इत्थे be लिखना है मतलब कि मान लो दो अंक ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਅੰਕ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ a ਅਤੇ b ਠੀਕ ਹੈ a ਅਤੇ b ਓਕੇ ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਥੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਇਥੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣੀ ਫੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ a b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ b a b ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ दोनों तरीके ना हो सकती ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ a b ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 89 ਹੈ ਤਾਂ 89 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 80 9 ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਗੁਣਾ 10 ਜਮਾ 9 ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਹੁਣ a ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਜਿਹੜਾ 10th ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਔਰ b ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1th ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ 10a b ਇਹ ਬਣਿਆ 10a plus b ओके ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਬਣੂਗਾ 10b ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 10b plus a ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੋ अंकां दा अंतर कितना दिता है बच्चों ये दिता है तुहानू 3 यानी कि a माइनस b बराबर 3 है और यानी कि ਜਾਂ b माइनस a बराबर 3 है तुसी एक नाल ही कर लेना ताकि कंफ्यूज नहीं होना दोनों तरीके नाल वैसे सही हुंदा है जिद्दां मर्जी कर सकते ठीक है तो इनू इक्वेशन नू आपां 1 दे देना उस तो बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जेकर असीं इंटरचेंज कर दईए जी डिजिट ठीक है कि अंकां ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ on interchanging the digits what we get b ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ a ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 10a plus b ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10a देखो 10a आ इत्थे कल्ला a आ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਦੀ a ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ b ਵਾਲੇ ਦੀ b ਨਾਲ 1a plus 10b ठीक है बराबर कितना है 143 तो ये आ गया बच्चों 11a और इधर आ गया 11b इक्वल टू 143 11 कॉमन कट लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ओके और ਜਦੋਂ कॉमन ਕੱਢੂਗੇ इथों a plus b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ देखो 11 ना डिवाइड हो जाना तो a plus b ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 13 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ तो वो भी यही आऊगा ठीक है तो बच्चों ये इन्ना पार्ट हो गया तो मतलब दो इक्वेशनां बन गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक आ गई a minus b equal to 3 और दूसरी बन गई a plus b equal to 13 ठीक है तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋल्व तो ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਈਆਂ a minus b equal to 3 and second is a plus b is equal to 13 तो ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ b ਨਾਲ b ਕੱਟ ਗਿਆ ਇੱਥੇ तो ਆ ਗਿਆ 2a ਬਰਾਬਰ 16 तो a ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ 8 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਾਈਨ इदा ही b की वैल्यू किदा कढूंगे हुण b की वैल्यू इथों कढ लो कि a plus b इक्वल टू 13 है तो b का मुल 13 माइनस a 13 दे विचों 8 माइनस कीते तो 5 दे बराबर आया
तो बी दी वैल्यू जी है वो 5 आ गई। ओके, तो यदा मतलब साड़ी संख्या कितनी बनी हुण, संख्या तो साड़ी यही बनी ना ए बी सीगी, तो जे ए बी होगा तो वो 8 5 आ जाऊगा, ਤੇ ਜੇ BA ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 58 ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 85 और 58। ठीक है, ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਆਏਗਾ। ओके, तो दिस इज योर सम नंबर 4 और ये थोड़ा जिहा औखा है बच्चों, पर इनू ध्यान नाल करियो। ठीक है, रिपीट कर देना। दो डिजिट नंबर लिया सी ए बी, मान लो दो अंक ए ते बी है, दो अंकां वाली संख्या ए बी बनी। ओके, ते ए बी नू असीं एक्सपेंडेड रूप च लिखांगे तां 10A प्लस बी आएगा। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिता होया कि दोनों का अंतर 3 है, ते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक होर कंडीशन दी है कि जे आपां अंकां नू उल्टा दईए ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 143 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ a + b = 13। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ 8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੋ ਸਮ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਮ ਸੀ 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5th ਸਮ। तो 5th सम इदां दा ही है, एक दो अंकां वाली संख्या दे अंकां दा जोड़फल। देखो अंकां दा जोड़फल इत्थे की है कि अंकां दा जोड़फल जिहड़ा है वो दिता होया। तो अंकां दा जोड़फल विचों मतलब कि इत्थे भी तुसीं यही मनोगे कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। ठीक है, कि मान लो लैट इहदे विच थोड़ा जिहा ट्रिक होर होना है कि मान लो तुहाडे कोल दो अंकां वाली संख्या जिहड़ी है, क्योंकि वो भी इत्थे हुण असीं अज्यूम किद्दां करनी है। देखो इह 'चों तुसीं पहला डिजिट मनना है कि let the digit at, ये थोड़ा जिहा अलग तरीके नाल करना पैना, digit at tens place। ठीक है, tens place यानी कि tens place से जिहड़ा डिजिट है उहनूं असीं x मान लैने। ठीक है, और वंस प्लेस से डिजिट जिहड़ा है वो मान लैने विचों, फिर दो अंकां दा जोड़फल क्योंकि 9 बनिया तो ये बन गया 9 - x। ठीक है, 9 - x ये थोड़ा जिहा ट्रिक इहदे विच हैगा, बाकी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओरिजिनल नंबर यानी कि जिहड़ी असल वैल्यू है, ठीक है, असल नंबर ओरिजिनल नंबर नूं असीं की लिखदे सी, ओरिजिनल नूं असीं इत्थे की है असल संख्या लिख देना। ठीक है, जिद्दां इत्थे लिखिया इत्थे भी की लिख देना असल संख्या। असल संख्या किहदे बराबर हुई, देखो असल संख्या हुई क्योंकि आ टेंस प्लेस ते आ तो इहनूं की कीता 10x प्लस ये वंस प्लेस ते आ, इहनूं आपां इदां लिख दिता। तो ये बच्चों बन गया 9x + 9। ठीक है, 9x क्योंकि 10x दे विचों आ वाले x माइनस हो जाने आ, तो 10 - 1 9 हुंदे ने, 9x नाल आएगा, 9 ये हैगे ने कल्ले। ठीक है, उस तो बाद नाउ इंटरचेंज ऑन इंटरचेंजिंग, नाउ on interchanging the digits। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ digits ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, obvious ਆ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ 10 ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 9 - x प्लस ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ x। तो वो संख्या बनेगी, देखो इथों 90 प्राप्त होया और माइनस दे 10x। ठीक है, और जमा दे x, ਇਹਦਾ मतलब ये आ गया 90 - 9x। ठीक है, 90 - 9x ये सानू प्राप्त होया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि ऑन इंटरचेंजिंग तुसी की लिखना है, हुण इत्थे लिखना हुण अंकां नूं उल्टाउण ते। ठीक है, समझ गए, असल संख्या सीधा लिख के उस तो बाद हुण अंकां नूं उल्टाउण ते जो संख्या प्राप्त हुई वो ये होगी। हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न मुताबक ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली की दिता है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੰਖਿਆ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ 27 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो नवी बनी संख्या ये हुई, नवी बनी संख्या हाँ जी, नवी बनी संख्या यानी कि 90 - 9x वो असल संख्या तो 27 ज्यादा है। असल संख्या कितनी सी 9x जमा 9 27 ज्यादा मतलब कि 27 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज्यादा यानी कि ऐड कर देने। ठीक है, तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, x ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ यानी कि 9x ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ, 9 + 9 18x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
और बाकी रकमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। तो 9 माइनस 90 माइनस 9 माइनस 27, ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 27 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ 36, 36 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 54, ठीक है। 36 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 54 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। तो 18x इक्वल टू 54, x की वैल्यू 54/18 इक्वल टू 3 इट मीनस x की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर आई, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ डिजिट एट टेंस प्लेस वो कितना हो गया, मैं मेरे को आ स्पेस हैगी मैं इत्थे लिखण लगा, ठीक है। डिजिट एट टेंस प्लेस का मतलब है कि 10वीं ਜਿਹੜੀ पोजीशन हैगी आ प्लेस वैल्यू उत्थे की आनी है, ठीक है। तो डिजिट एट टेंस प्लेस, हाँ जी, टेंस प्लेस वो कितनी आ जानी 3 ते बच्चों वंस प्लेस से डिजिट जिहड़ा है वो किहदे बराबर आ जाना वो आना है 6, ठीक है। 9 माइनस x बराबर 6 आ जाऊगा। तो ਇਹਦਾ मतलब साड़ी कोई संख्या किहदे बराबर है 2 डिजिट नंबर इक्वल टू नाउ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 36 नाउ, ठीक है। तो ਇਹਦਾ आंसर जिहड़ा वो 36 आएगा, ओके। तो दिस इज सम नंबर 5। नैक्सट साडा सम है सम नंबर 6। प्रीत दी उमर अब्दुल दी उमर तो 6 साल वध है, कितने साल वध है 6 साल वध है। 6 साल पहला प्रीत दी उमर अब्दुल दी उमर दा 4 गुना सी। दोनों दी वर्तमान उमर पता करो। प्रीत इज 6 ईयर ओल्डर दैन अब्दुल। 6 ईयर अगो प्रीत एज वाज 4 टाइम्स एंड फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, ठीक है। तो किवें करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਅਬਦੁਲ, ਏਜ ਆਫ अब्दुल, अब्दुल की एज कितनी है वो बच्चों आएगी x, ठीक है। मान लो इतने की लिखूंगे मान लो, ठीक है। अब्दुल दी उमर कितना लिखूंगे अब्दुल दी उमर, अब्दुल दी उमर वो किहदे बराबर आई वो बच्चों x मान लेनी है। और प्रीत दी उमर लेट दी एज ऑफ प्रीत, प्रीत दी उमर इतने लिख लेना है प्रीत दी उमर वो कितनी आ गई वो बच्चों 6 साल वध है, ठीक है। हुण 6 साल पहला नाल तुहानूं कंडीशन दित्ती है 6 साल पहला, 6 साल पहला अब्दुल दी उमर कितनी होगी 6 साल पहला विद्यार्थियों इत्थे लिख लेना 6 साल पहला, पहला मतलब 6 ईयर अगो अब्दुल एज कितनी होगी, मैं ए सीधा लिख लेना एज एज यानी कि अब्दुल एज कितनी होगी 6 साल पहला वो 6 साल घट होना, ठीक है। तो प्रीत दी एज जिहड़ी है वो कितनी हो जानी है x प्लस 6 वो भी 6 घट हो जानी है यानी कि इहदी x आ गई और इहदी x माइनस 6 आ गई, ओके। नाउ अगे क्वेश्चन की है 6 साल पहला प्रीत दी उमर अब्दुल दी उमर तो 4 गुणा सी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग की है कि जिहड़ी प्रीत दी एज है वो अब्दुल दी एज, ठीक है, अब्दुल दी एज नालों की है 4 गुणा ज्यादा सी, ठीक है। तो बच्चों इत्थे फिर प्रीत दी उमर कितनी आई वो x के बराबर आई और अब्दुल दी उमर कितनी रह गई 6 साल बाद x माइनस 6, ठीक है। तो 4x माइनस 24 इक्वल टू x, x नू दूसरी साइड ले गए माइनस दे हो जाने 24 दूसरी साइड ले जाओगे प्लस दे हो जाने। तो 3x इक्वल टू 24 इट मीनस x की वैल्यू जी है वो 8 दी 24 8 आ गई, ठीक है। तो 8 जी x की वैल्यू आई इहदा मतलब अब्दुल की एज जी है वो x साल है, ठीक है। मैं इत्थे लिख देना हुण अब्दुल एज वो कितनी आ गई x यानी कि 8 ईयर एंड प्रीत एज जी है वो कितनी आ गई बच्चों x जमा 6 हैगा। तो 8 जमा 6 बराबर 14 साल जिहड़ा है इहदा आंसर आएगा, क्लियर। नैक्सट सम हैगा सम नंबर 7। एक ही है कि 12 साल बाद मैं अपनी 4 साल पहला दी उम्र दा 3 गुणा होवांगा, मेरी वर्तमान उम्र पता करो। आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 year ago, find the present age, find the present age, okay। तो बच्चों 12 साल बाद की गल हो रही है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ कि let the present age यानी कि वर्तमान उम्र वर्तमान इत्थे लिख लेना, ठीक है। वर्तमान उम्र किहदे बराबर आएगी वर्तमान उम्र बच्चों x, ठीक है। मान लो मतलब let, ठीक है। मान लो वर्तमान उम्र कितनी है x साल। 4 ईयर अगो, ठीक है, 4 ईयर अगो 4 साल पहला 4 साल पहला 4 साल पहला उम्र कितनी होगी
x ਉਹਦੇ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 4 ਈਅਰ ਲੇਟਰ ਲੇਟਰ ਯਾਨੀ ਸੌਰੀ 12 ਈਅਰ ਲੇਟਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ यानी कि 12 साल बाद सॉरी 12 साल बाद कितनी होगी x जमा 12 के बराबर एज आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक कि मैं 12 साल बाद मैं अपनी 4 साल पहला वाली उम्र का 3 गुणा होवांगी तो 4 साल पहला वाली उम्र कितनी है ਇਹਦਾ 3 गुणा कर देना तो किहदे बराबर आ गया x माइनस 4 गुणा 3 बराबर किहदे बराबर होंगी x जमा 12 दे ठीक है। तो 3x माइनस इत्थे भी 12 आ गया 4 तीए 12 जो इक्वेशन नूं सॉल्व किया 3x चों x माइनस किते 2x दे बराबर आ गया ते 12 जिहड़े ने 12 किन्ने हो जाने विचों 24 तां इहदा मतलब x दी वैल्यू जिहड़ी है वो कितनी आ जानी है 12 दे बराबर आ जाएगी। तो ओदी वर्तमान उम्र जिहड़ी है 12 साल होएगी ठीक है। कितनी होएगी वर्तमान उम्र बराबर 12 साल इहदा आंसर आएगा ओके। तो ये सीगा सम नंबर किनवा ये सम नंबर 7 सीगा। लास्ट सम बच्चों है जिया दी उम्र काव्या दी उम्र काव्या दी उम्र दा दुगना है ठीक है। एंड जे काव्या दी उम्र 6 साल घटा दिते जाण ते जिया दी उम्र विचों 4 साल जोड़ दिते जाण तां जिया दी उम्र काव्या दी उम्र दा 4 गुणा हो जाएगी। दोहां दी वर्तमान उम्र पता करो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जिया जिहड़ी है ठीक है जिया दी उम्र जिहड़ी है तुसीं पहलां काव्या दी उम्र मननी इत्थे कि मान लो काव्यास एज ठीक है काव्यास एज कितनी है बच्चों x ते जियास एज कितनी हो जाएगी ऑब्वियस आ दुगना गया होया तो 2x होगी ठीक है। उन्होंने कहा कि जे काव्या दी उम्र विच 6 साल घटाते जाण ठीक है तो इत्थों की है काव्या दी तुसीं की लिखना कि इफ 6 is subtracted ठीक है ਜਾਂ on subtracting 6 from काव्या's age ਤਾਂ ਕਾव्या ਦੀ age ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ प्रेजेंट एज चों 6 घटा देने तो वो बच्चों की है x माइनस 6 के बराबर आएगा यानी कि काव्या की उम्र विचों 6 घटाउण ते इत्थे ही लिखना काव्या की उम्र तो 6 घटाउण ते इधर जिया की उम्र विच 4 जोड़न ते 4 जोड़न ते जिया की एज कितनी हो जाएगी तुसीं सीधा लिख लेना 4 जोड़न ते इधर लिख देना 6 घटाउण ते ठीक है यानी कि on subtracting 6 इत्थे on addition adding 4 ठीक है। तो जिया एज किहदे बराबर आ गई 2x प्लस 4 ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग की है क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग ये है कि जिहड़ी जिया दी उम्र है ठीक है जिया दी उम्र काव्या दी उम्र दा 4 गुणा हो जाएगी। तो काव्या दी उम्र कितनी सी कितनी आई काव्या दी उम्र आई x माइनस 6 ठीक है ते ये जिया दी उम्र फिर कितनी आ गई 2x प्लस 4 इहदी उम्र जिहड़ी है वो काव्या दी उम्र तो 4 गुणा ज़्यादा हो जानी है। तो इहनूं जदों तुसीं हुण सॉल्व करोगे x इत्थे 4x आ जाना 6 चौका 24 ठीक है 4x माइनस 2x विचों 2x ही रहूगा ओके। ये दूसरी साइड चल जाएंगे तो 24 प्लस 4 बराबर आ गए 28 ਇਹਦਾ मतलब x ਦਾ ਮੁੱਲ 28/2 बराबर कितना आ जाएगा 14 ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 ਇਹਦਾ मतलब काव्या की एज कितनी आ गई काव्या's एज इज इक्वल टू 14 एंड जिया's एज कितनी आ गई 14 गुणा 2 बराबर 28 साल ਉਹਦਾ आंसर आएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ਤੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ 2.2 ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋ 2-2 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 बार करूंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ आराम ना आ जाएंगे कॉपी ते भी 2-2 बार ही करने हैं ओके। थैंक यू वेरी मच।